جی کے ویب ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، اور میں ہوں آپ کا میزبان زبیر قریشی، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے بیچ جو شخصیت تشریف فرما ہیں آپ ڈاکٹر جاوید اقبال خان ہیں، جو فزیشین اسپیشلسٹ ہیں۔ ناظرین محترم، ان سے آج ہم بات کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک کے دوران جو ہم روزے رکھتے ہیں، ان روزوں کے انسانی جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، چونکہ شعبہ طب نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے انسانی جسم کو انگنت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیا وہ فوائد ہیں، ان پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا خوش آمدید استقبال۔ ہاں، شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز میں یہی جاننا چاہوں گا آپ سے، روزے کی حالت میں جو ایک جسم رہتا ہے ہمارا، تو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سے؟ دیکھیے، روزے سے سب سے پہلے ایک باڈی میں ایک ڈسپلن ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ کا سب جو پیٹرن ہے، لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ آپ افطاری کے ٹائم پہ اور یا سحر کے ٹائم پہ آپ کو اٹھنا پڑتا ہے، اور آپ کو جو نیند کا جو پیٹرن ہے اس میں بھی آلٹریشن آ جاتی ہے۔ خاص کر آپ کو نارملی ینگ لوگوں کو 8 گھنٹے تقریباً نیند کرنی چاہیے، لیکن اس میں کیا ہے کہ بریک کر کے آپ کو نیند کرنی پڑے گی۔ یا آپ سمپل سی باتیں میں بتاؤں گا آپ کو، افطاری کے ٹائم سے لے کر افطاری سے لے کر آپ جب نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تراویح کے بعد آ کے آپ ریسٹ کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، آپ کو 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے نیند ملے گی۔ لیکن نیکسٹ اس کے بعد آپ کو جاگنا پڑے گا، پھر کھانا کھانا پڑے گا، آپ کو نیا اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، ہر چیز میں نئی طریقے سے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور نیکسٹ سحر کے بعد آپ کو پھر صبح کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی ایک ریفریش مائنڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ ریلیکس کر کے کبھی کوئی لوگ سو جاتے ہیں، کچھ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، لیکن آئیڈیلی کچھ نیند کا پیٹرن میں جو خلل پڑتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے۔ سر، سائنسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، یا آپ کا طب شعبہ جو ہے وہ اس تعلق سے کیا کہتا ہے کہ کوئی اگر روزے سے رہتا ہے تو جسم میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک آٹوفیگی ایک فینامنا ہے، اس میں نیو سیلز ریجنریٹ ہو جاتے ہیں، اولڈ ڈیڈ سیلز ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ سمجھو فاسٹنگ سے روزہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے ایک ڈسپلن آف لائف رکھا ہوا ہے۔ فاسٹنگ سے کیا ہوگا کہ آپ کا موسٹ امپارٹنٹ وہ کینسر سیلز پہ بھی افیکٹ کرتا ہے، ایون کینسر سیلز ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے مڈل ایسٹ میں کچھ کنٹریز ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتے ہیں، سوموار کو اور بیروار کو روزہ رکھتے ہیں۔ اس دوران اس لیے وہاں پہ دیکھا گیا وہاں پہ کینسر رسک کم ہوتی ہے۔ یہ تو وہاں سے میں نے کینسرز کے بارے میں بتایا۔ اب نیکسٹ میں بتا دیتا ہوں، جیسے ڈائبٹیز ہے، شوگر کے بارے میں یہ آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا جی۔ ہاں بالکل، شوگر کا آپ کو اس میں نیا طریقے سے اپنا کلاک سیٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو جو لوگ یعنی کہ روزے سے ہوتے ہیں تو ان کو آلموسٹ شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، انسولین ریزسٹنس جو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جی جی جی۔ لیکن سر، جو یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں، انہیں بار بار انسولین کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہوگی؟ دیکھیے، یہ قرآن پاک میں بھی ہے، جو لوگ ہیلدی ہیں اور صحت مند ہیں وہ روزہ رکھیں گے۔ دیکھیے، اگر بات صحت ہے تو ٹھیک ہے، اگر ان میں کہیں ڈائبٹکس ہیں اور انسولین لے رہے ہیں، دن میں 2 یا 3 دفعہ انسولین لینا پڑ رہا ہے، خاص کر یا کڈنی فیلئر ہیں، ان کو دن میں 2-4 دفعہ بلڈ پریشر کی دوائی لینی پڑتی ہے، اور خاص کر ہائپر ٹینسو جو پیشنٹس ہیں، جو واقعی جن کو 2-3 دفعہ بلڈ پریشر دوائی لینی پڑتی ہے، ان کو بھی تو روزہ نہیں رکھنا پڑے گا۔ یہ کہ تو آپ ریلیجیس سکالر سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہاں، اس میں تو واضح بتایا گیا ہے کہ تو اس صورت میں ہیلتھ کو پہلے امپارٹنس دینی ہے، وہ بھی امپارٹنٹ ہے۔ حقوق اللہ بعد دونوں چیزیں ہیں، صحت اپنی بھی بچا کے رکھنی ہے۔ عام تاثر سر یہ پایا جاتا ہے نا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یا آپ میں خون کی کمی ہو جائے گی، یا آپ بیمار ہو جائیں گے، یا آپ سست ہو جائیں گے، تو کیا شواہد ہیں؟ دیکھیے، اس میں ایک باڈی میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے، آپ کا پورا باڈی کا ریزسٹنس وغیرہ جو ہے، آپ کا ڈیفنس باڈی کا میکانزم نیا ڈیولپ ہو جاتا ہے، امیون سسٹم سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، بلکہ ڈیٹاکس سے ہو جاتا ہے۔ لیور جو آپ کا چوتھے دن، جب روزہ رکھنے کے چوتھے دن کے بعد آپ کا ڈیٹاکس ہو جاتا ہے، جن میں اس کو گندا مواد جو ہے پاس ہو جاتا ہے، آپ باڈی کے اندر بھی پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم روحانی طور پہ اسپریچول طریقے سے آپ ایک ڈسپلن بن جاتے ہو، آپ کا اس طریقے سے باڈی کے اندر کا بھی ایک سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جو حاملہ خواتین ہیں یا وہ خواتین جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یا ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی اگر وہ روزے سے رہی؟ پہلے 6 مہینے جو ہے ماں جو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، لیکٹیٹنگ وومن اس کو بولتے ہیں، اس دوران تو اس کو بچے کا بھی کیئر کرنا ہے، اس دوران اس کو روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہے۔ آپ ریلیجیس اسکالر سے اور ایڈیشنل نالج اس میں لے سکتے ہیں، اور خاص کر حاملہ عورتوں کو، کیونکہ اس کو اپنا بھی کیئر ہے، اس کے پیٹ میں بچہ جو پل رہا ہوگا اس کا بھی کیئر کرنا ہے، اس لیے ان کو ان 2
कैटेगरीज को अगर रोज़ा ना रखा जाए उसके बाद ये कज़ा रोज़े रखते हैं, तो आपको इन चीज़ों का जजमेंट हो जाएगा, आप रिलीजियस स्कॉलर से आप जब बताएंगे। क्योंकि जी जी डॉक्टर साहब, इसके बगैर और कौन सी ऐसी मतलब अल्लाह ना करे कि कोई फ़र्द जो है वो किसी ऐसी बीमारी में है कि वो रोज़ा रखना चाह रहा है लेकिन साइंसी तौर पर वो मुनासिब नहीं है, उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बता पाएंगे ये कौन कौन सी ऐसी सूरत है जिस सूरत में रोज़ा नहीं रखना चाहिए? देखिए, जिसमें सीवियर अगर पेन होता है किसी टाइम भी, किडनी पेन हो गया, किडनी में स्टोन्स हैं, स्टोन्स पास हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन अगर उसको रखना नहीं है, जब ज़बान खुश्क हो जाएगी या उसका अंदर का जो बॉडी में वाटर रिक्वायरमेंट चाहिए, तो उस सूरत में वो बाद में कज़ा रोज़े रख सकता है, लेकिन फर्स्ट एड या फर्स्ट ट्रीटमेंट उसका जो हो जाना चाहिए नेक्स्ट वो कर सकता है, तो बेहतर है कि बाद में वो रोज़े रख सकता है अगर डिसाइड करना है एज़ पर द कंडीशंस ऑफ द पर्सन। जी डॉक्टर साहब, चूँकि ज़्यादातर अफराद जो हैं वो रोज़े से रहते हैं और इंसानी जिस्म को एक मिकदार में ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, थोड़ा बताएंगे कि सहरी के वक्त या इफ्तारी के वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं उनका कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये लवाज़मात जो हैं ये पूरे हो सकें? बेसल सीड जो होते हैं या बबरी बिल जिसको बोलते हैं, मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दूंगा। वो पानी में भिगो के 1 घंटा पहले रखो गर्म पानी में, उसके बाद वो उसकी लस्सी बना के पीना चाहिए। उस सब से आपको कूलेंट इफेक्ट देते हैं, आपका वो बेनिफिट रहेगा, आपका हाइड्रेशन स्टेटस ठीक रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब इफ्तार से लेकर सहर तक आपको वही टाइम है आपको पीने का, तो जितना से जितना हो सके आप पीने की कोशिश करें ताकि डे टाइम को आपको प्यास नहीं लगेगी। और ख़ासकर सहरी के टाइम पर अगर आप कुछ मेवे वगैरह इस्तेमाल करोगे, उससे दिन के टाइम आपको ज़ुबान खुश्क नहीं होगी या डिहाइड्रेशन का इफेक्ट नहीं होगा। तो और कोई ऐसी चीज़ है जो जिस चीज़ का आप इजाफा करना चाहेंगे कि रोज़ादारी के दौरान हमें किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, ख़ासकर वो अफराद जो किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं? बिल्कुल, अगर जो टाइमिंग है, जो डायबिटीज़ की मेडिसिन जो है वो चेंज करना है। अगर औरल हाइपोग्लाइसेमिक अगर दवाई खा रहे हैं तो उनको अर्लियर इफ्तार के टाइम खाना है, या थायराइड की दवाई खाना है तो इफ्तार करने के जब खाना खाने के 1 घंटे बाद एक गैप होना चाहिए, आधा घंटा थायराइड की दवाई को ली चाहिए। तो इस तरीके से अगर ब्लड प्रेशर की दवाई है वो इफ्तारी के टाइम खाना है, क्योंकि सहर के टाइम प्रेशर की दवाई खाने से दिन को बीपी डाउन आ सकता है, लेकिन इफ्तारी के टाइम ब्लड प्रेशर की दवाई खाने से एक ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा और अपने मेंटेनेंस में रहेगा। यानी वो अफराद जो जिन्हें ब्लड प्रेशर है और उन्हें डेली दवाई लेनी पड़ती है, तो उनका रूटीन कैसे रहेगा इफ्तारी के टाइम पर, क्योंकि उसी के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, खा लेते हैं। अच्छा, आम बाकी किसी मर्ज़ में अगर कोई मुब्तला है या डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया है कुछ दवाई खानी है, और जैसे IBD है, सुबह खानी है, दोपहर को खानी है, तो शाम को खानी है, तो वो चेंज कर सकता है इफ्तारी से लेकर सहरी तक? बिल्कुल, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बिल्कुल, उसी टाइम देखो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह कोई बड़े इश्यूज़ नहीं है, ये माइनर इश्यूज़ होते हैं, बल्कि आपका इंटेस्टाइन या अंतड़ियों को रेस्ट मिल जाएगा। आप देखिए, रेस्ट मिलने से आपका रीजनरेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, है ना। जैसे मैं अब दोबारा कुछ चीज़ें मैं आपको दोबारा बताऊंगा, जब ब्लड प्रेशर के बारे में बताऊंगा कि अच्छी तरीके से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, बल्कि लो हो जाएगा। आप इफ्तारी के टाइम उसके प्रेशर की दवाई खाओगे, तो अगर आप सहरी के टाइम खाओगे तो डे टाइम पे आपका BP लो होने के चांसेस हैं। तो शुगर की दवाई अगर इफ्तारी के टाइम खाओगे तो वो ठीक है, लेकिन अगर सहर को खाओगे तो मॉर्निंग टाइम आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो इस तरीके से गाउट की कोई दवाइयाँ हैं जो जितना उनको उसी तरीके से अडॉप्ट करना है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। जी डॉक्टर साहब, एक वसी तजुर्बा है आपका, आप जनरल फिजिशियन हैं और गुज़श्ता कई सालों से आप इस शोबे के साथ वाबस्ता हैं। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर हमारे जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं उन तक क्या पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, जो यंग लोग हैं, ख़ासकर वो हम लोग मोबाइलों का ज़्यादा यूज़ जो करते हैं, वो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे, उसके इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी स्लीप पैटर्न पे। आप टाइम पे नींद नहीं कर सकते हो। आपको एक साइकिल अडॉप्ट करनी है रमज़ान के महीने में, ख़ासकर आप इसी दौरान, यही एक सही टाइम है, आप स्मोकिंग छोड़ सकते हो, सिगरेट छोड़ सकते हो, खुदा न खास्ता कोई और भी कोई नशा चल रहा है तो ये टाइम है, सही टाइम है, आप नशा छोड़ सकते हो। आप फैमिली की सपोर्ट मिलना चाहिए तो वो भी आपको देते हैं, और बाकियों की सपोर्ट चाहिए, हमसे रब्ता रखना चाहें हम आपको सपोर्ट देंगे। यंग जनरेशन तो हमारा फ्यूचर है, तो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह ये छूट सकता है। आप पानी की मकदार अच्छा ले लो। मैं बोलता हूँ नॉर्मली जो पानी पीना है 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना चाहिए। अब सैर से लेकर इफ्तारी से लेकर या सैर तक जो है इतना ज़्यादा आप पानी नहीं पी सकोगे, लेकिन फिर भी 1 घंटे में 1 गिलास के हिसाब से 8-10 गिलास तकरीबन पानी होना चाहिए, या रस सूप वगैरह होना चाहिए, वेजिटेबल सूप होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, आपका
फ्रूट सलाद होना चाहिए, 7 कलर के फ्रूट्स खाने चाहिए। तो ऑयल फैट्स थोड़ा कम करो। ओबेसिटी, एंटी ओबेसिटी मेजर्स हो जाते हैं कुदरती तौर पर। अल्लाह ताला ने ये रमज़ान का महीना जो दिया है, एंटी ओबेसिटी भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। आप सोच समझ के, टेक द फूड एज मेडिसिन, सोच समझ के खाना है, प्लानिंग करके खाना है। इफ्तारी के टाइम क्या चीज़ होनी चाहिए, किस चीज़ से मुझे बॉडी में हाइड्रेशन ठीक रहेगा, किस चीज़ से मुझे स्टोन बन सकते हैं। खाली अगर हम मान लीजिए कोई एक गज़ा होती है उसमें स्टोन बन सकते हैं, मान लो हम बोलेंगे प्याज ही खाते रहना, प्याज टमाटर वगैरह, उसमें अगर पानी नहीं पिया तो किडनी स्टोन्स वगैरह बन सकते हैं। तो ये है कि, और अगर आपके डॉक्टर्स ने कोई दवाइयाँ रखी हैं तो नेचुरली उनको आपने प्रॉपर टाइम पे खाने की कोशिश करते रहना है। डॉक्टर साहब, अब आखिर पर मैं एक सवाल आपसे ज़रूरी तो ये जानने की कोशिश करूँगा। अक्सर कुछ अफराद इफ्तार जैसे ही होता है वो कुछ खाने को प्रेफर करते हैं, कुछ पहले चाय पीते हैं। तो साइंटिफिकली तौर पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि बेहतरीन ग़ज़ा इफ्तारी के वक्त की क्या है, चाय पीना या खाना खाना? बेसिकली ये इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, लेकिन मैं सबसे प्रेफर करूँगा बबरी बिल का जो पानी वगैरह होता है वो सबसे बेस्ट होता है। या डेट्स जो खा लेते हैं इफ्तारी, तो डेट्स से 1-2 उसमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, 2-4 डेट्स खा लेना है। अगर डायबिटिक हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह जो कंट्रोल जैसे होते हैं उनको थोड़ा सा लिमिटेड डेट्स खाना है, 3 से 4 डेट्स खा लेना है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स भी ले लेना चाहिए। हाँ, उस डिपेंड करता है, इंडिविजुअल चॉइसेस पे है। अलबत्ता प्रेफरेबली मैं बोलता हूँ जो ये है बबरी बिल का जो पानी पीते हैं या लस्सी पीते हैं, ये कूलेंट इफेक्ट देगा आपको, अंदर से बहुत अच्छा रखेगा आपको। तो उसके बाद चाय की खाना, हाँ, उसके बाद तकरीबन अगर चावल खा लेंगे या बत्ता रोटी, 19-20 का फ़र्क है। ये ग्लाइसेमिक फूड्स हैं, डिपेंड करता है आपकी अपनी चॉइस क्या है, दोनों में से कोई खा के। हमारा अक्सर पैटर्न ये है कि हम नून चाय को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो खाना खाने के बाद तकरीबन 1-2 कप नून चाय तो होता ही होता है। ये उससे कोई डाइजेस्टिव प्रोसेस हो जाता है। मोस्ट लाइकली इसमें सोडा बाइकार्बोनेट कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ डाइजेस्टिव काम करता है वो। तो उसके बाद अब सैर के टाइम पे आप प्रेफरेबली अगर आप खाना खाना है तो ज़रूरी है, उसके बाद आप फ्रूट्स वगैरह खा लोगे तो वो ज़्यादा रहेगा। दिन के टाइम आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, बिलाशुबा ये मौजू इतना कसीर है कि इस पर जितनी भी बात की जाए हमारे पास वक्त की हमेशा कमी ही रहेगी। बहरहाल आपने फिर भी इतनी चीदा बातें जो है हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की, और सबसे बड़ी बात अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम वेलकम। तो नाज़रीन, आप थे डॉक्टर जावेद इकबाल ख़ान जो कि फ़िज़िशियन स्पेशलिस्ट हैं, और इनसे हमने रमज़ान के दौरान जो रोज़े की हालत में इंसानी जिस्म को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं उस ताल्लुक़ से बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको इन बातों से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। आप देख रहे हैं GK वेब TV, हमारे साथ बने रहिए।